अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 25 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह कबीरा ये हैं कि अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, जान का हलाक करना, झूठी कसम खाना, इनसे बचना चाहिए। और अब सुर्खियां। खवातीन पर पवन के नाज़िबा रिमार्क का एपी खवातीन कमीशन ने लिया संजीदा नोट। पवन कल्याण को रवाना की नोटिस। अमरावती पदयात्रा 4 दिन के लिए रुक गई। पुलिस ने अदालती अहकामात की पासदारी करने का दिया मशवरा। मुनगुड़ में बीजेपी और टीआरएस दोनों को अपनी अपनी जीत का यकीन। दोनों पार्टियों में इल्जाम व जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी। कल हिंद पाक टीमों के दरमियान मेलबर्न में खेला जाएगा T20 मैच। जीत के लिए हिंदुस्तानी टीम पुरअज़्म। और अब तफसील। पवन कल्याण के बयान का एपी खवातीन कमीशन ने संजीदा नोट लिया है। पवन कल्याण को नोटिस जारी की है। तलाक देकर 3 शादियां करने के पवन कल्याण के बयान पर खवातीन कमीशन ने सख्त बरहमी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर मुआवजा देकर बीवियों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा। खवातीन के लिए स्टेपनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर उन्होंने एतराज़ किया। वासी रेड्डी पद्मा ने पवन के 3 शादियों के रिमार्क को वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया। వ్యాఖ్యల్ని ఉపసంహరించుకోవాలి. 3 పెళ్లిళ్లపైన ఆయన చేసింది పొరపాటు వ్యాఖ్యలు అనేటటువంటిది ఆయన ఒప్పుకోవాలి. మేము పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నా కూడా పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడకూడదు అంటే పబ్లిక్ లైఫ్లో మీరు ఒక హీరోగా ఉన్నారు, ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి లీడర్గా ఉన్నారు. అట్లాంటప్పుడు మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఇంత అధ్వానంగా ఉంటే, మహిళలకు సంబంధించి ఇంత నష్టం చేసేటటువంటి విధంగా ఉంటే, మీ ప్రతి మాట కూడా మహిళలకు సంబంధించినటువంటిది ఒక అన్యాయం చేసేటటువంటి పద్ధతిలో ఉంటే దాన్ని మాట్లాడకుండా ఎలా ఉంటారండి? పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉంటే పర్సనల్ విషయాలు పర్సనల్ విషయాలు అందరికీ చేతగాకనా? ఈ రోజున పర్సనల్ విషయాలు అందరూ తిరగలేక అందరూ 3 పెళ్లిళ్ళు చేసుకోలేకనా? 3 పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం అనేటటువంటిది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తప్పు కానప్పుడు, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెల్లినప్పుడు నాకెందుకు చెల్లదు అనేటటువంటిది ఎంతోమంది మగవాళ్ళు దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోరా? దీన్ని ఒక స్ఫూర్తి పొందరా? ఈ దిక్కుమాలిన స్ఫూర్తి కదా మీరు ఇచ్చింది. మేము కూడా నా భార్యతో నాకు పడట్లేదు, గొడవలు అవుతున్నాయి, దాని మొహాన్ని కొంచెం డబ్బులు కొట్టేసేసి నేను కూడా విడాకులు తీసుకోవచ్చు అనేటటువంటి ఒక ఇండికేషన్ని మీరు ఇంత స్పష్టంగా ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని మహిళలు ఎందుకు క్షమించాలి? अमरावती की पदयात्रा रुक गई है। 4 दिन के लिए पदयात्रा के लिए आर्जी वक्फे का ऐलान किया गया है। रामचंद्रपुरम के पास पदयात्रा रोक दी गई है। पुलिस ने बताया कि हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक यात्रा में हिस्सा लेने वाले शिनाख्ती कार्ड्स पहनकर यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए। ఎప్పుడైతే ఈ అమరావతి రైతులు పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేశారో అప్పుడే హైకోర్టు నుంచి వీళ్ళకి క్లియర్ గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయండి. అంటే కేవలం 600 మంది మాత్రమే, అది కూడా ఎవరైతే హైకోర్టు స్పెసిఫై చేసి 600 నేమ్స్ ఇచ్చేసిందో వాళ్ళు మాత్రమే పాల్గొనాలి. అలాగే ఈ 600 మంది వాళ్ళ కన్సర్న్ ఐడి కార్డ్స్ పెట్టుకొని ఉండాలి. 4 వెహికల్స్ మాత్రమే ఈ యాత్రలో పాల్గొనాలి. తర్వాత ఎవరైతే సంఘీభావం తెలపనీకి వస్తారో వాళ్ళు ఎక్కడక్కడ గుంపులుగా ఉండకుండా రోడ్డు పక్కన ఉండి వీళ్ళకి సంఘీభావం తెలియజేయాలి. ఈ వేరే పార్టీలు కానీ నార్మల్ పబ్లిక్ కానీ ఎవరు కూడా ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొనడానికి వీల్లేదు. కేవలం ఈ 600 మంది మాత్రమే పాల్గొనాలా అని క్లియర్ గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే వీళ్ళు ఈ 40 రోజులు ఏ గైడ్లైన్స్ పాటించకుండా ఇంత దూరం వచ్చేసారు. మళ్ళీ మొన్న రాజమండ్రిలో ఏదో చిన్న గొడవ జరిగిన తర్వాత ఈ కన్సర్న్డ్ ఎవరైతే ఈ అమరావతి జాక్ ఉందో వీళ్ళే వెళ్ళారు హైకోర్టుకి. హైకోర్టు మళ్ళీ ఏదైతే మేము ముందు ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ పక్కాగా పాటించాలా, ఇది పోలీసుల బాధ్యత అని చెప్పింది. దాని మీద మేము వాళ్ళని ఈరోజు మీరు ఐడి కార్డ్స్ ప్రాసెస్ చేసుకున్నారు కదా, అవి ఖచ్చితంగా మాకు చూపించిన తర్వాత మాత్రమే మేము అలౌ చేస్తామని వాళ్ళ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. కానీ अमरावती यात्रा जो 40 दिनों से जारी थी, इसके यात्रियों ने हाईकोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की। ये बात रामचंद्रपुरम के डीएसपी बालाचंद्र रेड्डी ने कही और कहा कि अमरावती यात्रा के सिर्फ 75 अफराद किसानों के पास शिनाख्ती कार्ड्स मौजूद थे। अमरावती पदयात्रा से मुतालिक अंबाटी रामबाबू ने अपने ही अंदाज में रिमार्क किया है। उन्होंने सवाल किया कि आधार पूछने पर ही फरार होना इस बात का सबूत नहीं है कि ये यात्रा फर्जी है।
तीन सदर मुकाम की तायद में नंदियाल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तीन सदर मुकाम की तश्कील के लिए जदोजहद में तेजी लाने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए मकसद से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में MP P ब्रह्मानंदा रेड्डी, सरकारी विप MLC गंगुला प्रभाकर रेड्डी, अरकान असेंबली कस्तानी राम भोपाल रेड्डी, शिल्पा रेड्डी, कस्तानी रामी रेड्डी और MLC ईसा बादशाह ने शिरकत की है। अनंतपुर के असातिज़ा भवन में गैर मरकूज़ तरक्की के हवाले से अवामी तंजीमों ने इजलास मुनक़िद किया। तीन सदर मुकामात के क़याम की तायद में JEC का क़याम अमल में लाया गया। इस इजलास में तलबा, मुलाजिमीन तंजीमों के अलावा दानिश्वरों ने शिरकत की और गैर मरकूज़ तरक्की के हवाले से होने वाले फ़ायदों को गिनाया। एलूरू जिले में पोलावरम प्रोजेक्ट का AP के वजीर आबपाशी अंबाटी राम बाबू ने दौरा किया। कॉपर डैम और स्पेलवे के कामों का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल 3 बार सैलाब आ जाने से लोअर कॉपर डैम के कामों की तकमील वक्त पर न हो सकी। कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के ऑडियो टेप से सनसनी फैल गई है। मुनुगुडु इंतखाब के दौरान BJP उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को वोट देने कांग्रेस कारकुनों से वेंकट रेड्डी की अपील ने कांग्रेस खैमे में हंगामा बर्पा कर दिया है। मुनुगुडु इंतखाब में कांग्रेस की हार के बाद कोमटिरेड्डी ही PCC होने का दावा किए जाने की बात कॉल में रिकॉर्ड हुई है। नलगुंडा में BJP के कौमी सदर नड्डा की अलामती समाधि बनाने पर MP डॉक्टर लक्ष्मण ने मजम्मत की और ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने TRS पर गिरी हुई सियासत करने का इल्जाम लगाया है। जो उपचुनाव मुनुगोड़ के अंदर हो रहा है, आज TRS पार्टी कोई मुद्दे नहीं उनके पास, 8 साल के बावजूद भी कुछ किया ही नहीं, तो बताने का कुछ एजेंडा ही नहीं था। इसलिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का खबर खोदकर तस्वीर लगाकर दफनाना इतना मूर्खत्व है। ये TRS पार्टी और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भूतपूर्व केंद्र मंत्री है, राजनीति के अंदर आज किस तरह आज पहुंच रहे लोग, आज पूरा देश उनकी ओर देख रहे हैं। ये उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह देश में विकास और कल्याणकारी योजना के बारे हम जब जिक्र कर रहे, अब हमेशा जातिवाद या मजहब या ऐसे जो खबर खोद कर उसको दफनाना, लोगों को दृष्टि को, ये हम पूरा निंदा करते हैं। कोमटिरेड्डी की खुदगर्जी के सबब ही मुनुगुडु हल्के का ज़िमनी इंतखाब नागुज़ेर हो गया है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में KCR की मकबूलियत को देखकर BJP खौफ का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि BJP जितनी भी साजिशें कर ले, मुनुगुडु में TRS शानदार फतेह हासिल करेगी। సహజంగా ఉప ఎన్నికలు ఒక వ్యక్తి మరణించినప్పుడు లేదా ఇంకేదైనా ఇంకో చట్టసభకి ఎన్నికైన సందర్భంలో ఒకటే ఉంచుకోవాలి కాబట్టి రాజీనామా చేసిన సందర్భంలో ఇట్లాంటి కారణాలతోనే వచ్చినాయి మనం చూసినాం. కానీ ఇక్కడ ఈ ఉప ఎన్నిక ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయంలో ఉప ఎన్నిక తెచ్చిన ఆయనకు స్పష్టంగా చెప్పడానికి ఏమీ సమాధానం లేదు. దాన్ని తేవడానికి కారకులైన వాళ్ళు చెప్పే కారణాలు కూడా సహేతుకంగా లేవు. దీంట్లో 2 విషయాలు కనబడుతున్నాయి ఈ ఉప ఎన్నికలో. ఒకటి, ఎన్నికైన అభ్యర్థి 4 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నిక తేవడం వెనకాల మతలవేంది అనే చర్చ జరిగినప్పుడు స్పష్టంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వార్థం దీని వెనకాల కనబడతా ఉంది. తేవడానికి కారణమైన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్న పార్టీ, జాతీయ పార్టీ, దాని యొక్క రాజకీయ అవసరం కొరకు చేసిన ఒక కుట్ర కోణం దీంట్లో మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. వాళ్ళ రాజకీయ అవసరాన్ని, వాళ్ళ రాజకీయ క్రీడలో భాగంగా చేసిన ఒక పనిలో ఈ వ్యక్తి తన స్వార్థానికి వాడుకొని ఈ ఎన్నికను తెచ్చినట్టు మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. असद अवैसी ने विकाराबाद के जलसे-ए-आम में तमाम नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों पर मुसलमानों के साथ शाना बशाना न चलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बरसर इक़्तिदार जमात पर भी तनकीद की और दीगर जमातों में सियासी इल्जाम की तकमील के लिए जाने वाले कायदीन को मजलिस में शामिल होने का मशवरा दिया। रूलिंग पार्टी है तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा बन जाते वो लोग। ऐसे 56 रूलिंग पार्टी आके चले गए,
बहुत से एमएलए को हम भी देखे, इनका काम यह है कि वो जो बोलते करके दिखाना, और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनसे हर महाज पर इनके बड़े बड़े लीडरों को भी बोल रहे हैं, ये काम कराओ आप, ये काम कराने की जरूरत है। मगर मैं आप मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को एक पैगाम दे रहा हूं, यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सियासी तौर पर शिकस्त मिले, मगर आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। यह क्या बात है कि आप मुझे हाथ लगाने से डर रहे हैं? क्या मैं 133 केवी का इलेक्ट्रिसिटी का वो है क्या मेरे पास? हाथ लगाते कि शॉट लगेगा तुमको? नहीं, आप समझो बात को, क्या समझना बाबा, इज्जत और अहमियत जरूरी है हमारे लिए। तो ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो अपना सियासी मकसद, जो अपने सियासी अजाइम की तकमील के लिए इन पार्टियों में जाकर बैठे। कुछ होने वाला नहीं है प्यारे, आ जाओ यहां पर, आओ लड़ो, हम अपना इज्जत और मुकाम पैदा करेंगे। हैदराबाद में कैंसर के शऊर बेदारी रैली का इनेकाद हुआ। इस रैली में रियासती वजीर हरीश राव और फिल्मी अदाकारा ने शिरकत की। MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी की जानिब से छाती के कैंसर के शऊर बेदारी के सिलसिले में रैली का इनेकाद हुआ। डॉक्टरों और नौजवानों की कसीर तादाद ने इस रैली में शिरकत की। मूवमेंट फॉर चाइल्ड रिफॉर्म्स के जरिए ज़ेर एहतमाम बचपन और जवानी के उन्वान से सिंपोजियम का हैदराबाद में इनेकाद हुआ। इस सेमिनार में बच्चों और जवान बच्चों की अहमियत, मसाइल और चैलेंजेस पर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के रुकन सेक्रेटरी S गोवर्धन रेड्डी की सदारत में सिंपोजियम का इनेकाद हुआ। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के शफीउल्लाह मेहमान खुसूसी और दूसरों ने सिंपोजियम को खिताब किया। गुंटूर पुलिस ने बच्चों का अगवा करने वाली गैंग को पकड़ लिया है। गुंटूर के सरकारी अस्पताल से अगवाशुदा वर्षित के केस को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दिया है। वर्षित को अगवाकारों के चुंगल से बहिफाजत आजाद करा लिया गया। इस केस को हल करने के लिए पुलिस ने CC कैमरे फुटेज का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि 23 सितंबर को अरंडलपेट में 4 साल लड़के प्रकाश को अगवा करके फरोख्त करने का मुलजिमीन ने इंकशाफ किया है। प्रकाश और वर्षित को पुलिस ने बहिफाजत गुंटूर वापस लाया। పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారు. రాగానే నా బాబు అయితే నా దగ్గర రాలేదు 10 నిమిషాల దాకా. తర్వాత మేమందరం నా దగ్గరకు వచ్చి కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాను. నా బాబుని మీ సహాయం వల్ల, పోలీసు వారి సహాయం వల్ల నా బాబుని నా దగ్గరికి తెచ్చారు సార్. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు నా బాబు నా దగ్గరికి తెచ్చినందుకు. कड़पा के शायर व अदीब सैयद अफसर कड़पवी का कल रात इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज असर बाजार की जामा मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन कब्रस्तान हजरत अली मुराद शाह में अमल में आएगी। सैयद अफसर कड़पवी मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए PM रोजगार मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस रोजगार मेले के तहत 10 लाख अफराद को रोजगार मुहैया करने का दावा किया गया। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 75,000 उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर हवाले किए गए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत 38 वजारतों व महकमों में नौकरियां मुहैया की जाएंगी। है कि आप इस बड़े संकल्प को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव को सर्वोपरि रखेंगे। याद रखिए, आपका सपना आज से शुरू हुआ है, जो विकसित भारत के साथ ही पूरा होगा। आप सभी को फिर से नियुक्ति पत्र, जीवन की एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि आप मेरे अनन्य साथी बनकर के हम सब मिलकर PM रोजगार मेले का नौजवानों ने खैर मकदम किया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमें अब
जॉब है हमारे पास, अब हम अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं। हम बहुत थैंकफुल हैं पीएम के लिए, पीएम को। हाँ, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये। और हम लोग जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमको मिलेगा। तो ये सभी डिपार्टमेंट को। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करनूल से फिर कर्नाटक में दाखिल हुई है। करनूल में 4 रोज यात्रा करने के बाद राहुल गांधी रायचूर पहुंचे। रायचूर में राहुल गांधी का पुरजोश खैर मकदम किया गया। कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल होगी। मजहब के नाम पर हम कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क का एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने खैर मकदम किया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अदालत के फैसले का शत्रुघ्न सिन्हा ने खैर मकदम किया। हाँ जी, बहुत सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या किसी मजहब का, किसी मजहब के या किसी भी धर्म विशेष या धार्मिक लोग जो हैं उनके खिलाफ भी किसी किस्म का ऐसी बात करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ अच्छी टिप्पणी की है। ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। आज यही समाज में हो रहा है चारों तरफ, और गलत हो रहा है। जो हो रहा है बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। हमें सर्वधर्म समभाव का ध्यान रखना चाहिए, सेकुलरिज्म का ध्यान रखना चाहिए। और आज चारों तरफ जो देश में डिवीज़न की स्थिति दिख रही है, लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। T20 आलमी कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला कल मेलबर्न में होगा। हिंद पाक मैच को लेकर काफी जोशो खरोश पाया जाता है। हिंदुस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद कल के मैच का मुशाहिदा करेगी। हिंदुस्तानी मद्दाहों ने हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मैंने जनवरी में मैं टिकट बाय कर ली थी। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं कल भी आया था यहाँ पे और आज भी आया हूँ। आज हमने इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन देखा है और अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान का होने वाला है। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो आपको पता है, फिर वो तो हमारे दिल के करीब है। और हम फुल एक्साइटमेंट के साथ देखने आएंगे संडे को, और एक्साइटेड भी है। टाइम तो गुजर ही नहीं रहा। आई एम रियली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। दिस इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल बैटल्स and really looking forward to it. India should win, though the absence of Bumrah and Jadeja are going to be vital, but still I feel India should win this time. और I'm really excited कि मैं इंडिया को विन करते देखना चाहता हूँ। इंडिया की और विराट कोहली और रोहित की मैं बैटिंग इतनी बढ़िया देखना चाहता हूँ भी पाकिस्तान को पता लग जाए भी हाँ, अगर वो 124 पे 0 खेल सकते हैं तो हम भी 124 पे 0 आउट खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे को पहले तो टिकट भी नहीं मिली थी क्योंकि वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई थी, लेकिन किसी फ्रेंड के थ्रू मिल गई मुझे, तो लक मानता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, लास्ट टाइम हम चूक गए थे, लेकिन इस बार पक्का हरा पाएगी क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम इतनी क्लोज जो नेट प्रैक्टिस देखी है आज, अर्शदीप की बॉलिंग या रोहित भाई या दिनेश भाई, तो मेरे को लगता है इस बार इंडिया ज़रूर जीतेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खवातीन पर पवन के नाजेबार रिमार्क का एपी खवातीन कमीशन ने लिया संजीदा नोट। पवन कल्याण को रवाना की नोटिस। अमरावती पदयात्रा 4 दिन के लिए रुक गई। पुलिस ने अदालती अहकामात की पासदारी करने का दिया मशवरा। मुनगुड़ में बीजेपी और टीआरएस दोनों को अपनी अपनी जीत का यकीन। दोनों पार्टियों में इल्जाम व जवाब इल्जाम का सिलसिला जारी। कल हिंद पाक टीमों के दरमियान मेलबर्न में खेला जाएगा T20 मैच। जीत के लिए हिंदुस्तानी टीम पुरअज़्म। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।